Hello everyone, welcome to Avigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my law session. In this session of law, I was discussing Design Act 2000. In the beginning of this lecture series, I discussed about general concept related to design law, such as what is design, which type of designs comes under this Design Act, and what is the objective of Design Act 2000, what is the history behind Design Act 2000. All these aspects I discussed in the beginning lectures, and then I started the important sections related to Design Act 2000, in which I discussed chapter 1, that is preliminary, in which I discussed two sections, section 1 and section 2. Then we come in second chapter, that is related to registration of designs, because this chapter is very much important, because this gives the procedure or method ki how the designs are getting registration under this act, which types of designs can be registered under this act. So from section 3, that is related to controller and other officer, then section 4, prohibition of registration of certain designs, then section 5, application of registration of designs, then registration on to be in respect of particular article, section 6, then section 7, publication of particulars of registered design, section 8, power of controller to make orders regarding substitution of application, etc., and section 9, in which I discussed certificate of registration. Then I discussed section 10 in short, ki register of designs. After that we came in chapter 3, in which the topic of the chapter is copyright and registered designs. ठीक है कि registered designs में copyright क्या होगा, कैसे होगा, तो उसमें हमने सेक्शन 11 डिस्कस किया था, कॉपीराइट इन रजिस्ट्रेशन. देन वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 16. ओके, in section 16 I have discussed effect of disclosure of copyright, and then I have discussed section 19, cancellation of registration, and then I have also discussed in chapter 4, industrial and international exhibitions से related chapter है, इसमें मैंने section 21 डिस्कस किया था, that is the section which is related to provisions as to exhibitions. Okay, so all these important sections I have discussed which are related to Design Act. Now नेक्स्ट सेक्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा चैप्टर 5 में लीगल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, कि कैसे लीगल प्रोसीडिंग्स चलेंगी अगर कहीं पर पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइंस होता है. पायरेसी का क्या मतलब है? पायरेसी का मतलब है कि आप किसी डिज़ाइन की, जो डिज़ाइन ऑलरेडी डिज़ाइन एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसका आपने क्या किया, इमिटेशन किया किसी ने. ठीक है, उसकी नकल तैयार कर दी, उसको नकली बनाकर उस डिज़ाइन का यूज़ किया. तो क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं वो सेक्शन 2 बताता है. मीन्स समझ लीजिए कि पनिशमेंट टाइप ऑफ प्रोसीडिंग्स है, या जो भी आपको कंपनसेशन पे करना होगा उसके तरीके की प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि सिविल में है. तो वो आपको सेक्शन 22 बताता है, पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइंस. लेट अस स्टार्ट द सेशन. तो 22 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट इन एनी डिज़ाइन इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन. कि जब डिज़ाइन का कॉपीराइट पीरियड चल रहा है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट चल रहा है. हम पहले भी बता चुके हैं कि कॉपीराइट डिज़ाइन का कितने समय का है, कि पहली बार में 10 साल का है और 5 साल बाद में आप एक्सटेंड करा सकते हैं, टोटल 15 ईयर्स का है. तो जो कॉपीराइट किसी रजिस्टर्ड डिज़ाइन का जब कॉपीराइट एग्जिस्ट कर रहा है उस समय में इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन, कि ये किसी भी तरीके से लॉफुल नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के लिए. मतलब ये विधिपूर्ण नहीं है, ये लीगली नहीं है सही, कि वो अगर क्या करता है तो वो आपको ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट बताएगा. ए क्या कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ सेल, कि वो व्यक्ति क्या करता है, सेल के पर्पस के लिए, ठीक है, बेचने के उद्देश्य से या सेल के पर्पस के लिए, टू अप्लाई,
ठीक है, अप्लाई करता है, और कॉज टू बी अप्लाइड टू एनी आर्टिकल, या फिर किसी आर्टिकल में उसको उस चीज़ का इस्तेमाल, उस डिज़ाइन का इस्तेमाल करना है इन एनी क्लास ऑफ आर्टिकल्स। मतलब जो आर्टिकल्स का मतलब किसी भी क्लास के वो आर्टिकल्स हैं, उनमें किसी आर्टिकल में उस डिज़ाइन को इस्तेमाल करना है या उस डिज़ाइन को उसको बेचने का पर्पस है। ठीक है, इन विच द डिज़ाइन इज़ रजिस्टर्ड, मतलब जिस क्लास ऑफ आर्टिकल में वो डिज़ाइन रजिस्टर है, ठीक है, तो उसी में उसको क्या करना है, उसका सेल करना है या फिर उसे किसी आर्टिकल में अप्लाई करना है। ठीक, और वो क्या करता है, द डिज़ाइन और एनी फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन देयर ऑफ, वो व्यक्ति क्या करता है कि उस चीज़ को, उस डिज़ाइन को या उस डिज़ाइन का कोई क्या करता है, फ्रॉडुलेंट मतलब कोई कपटपूर्ण, और ऑब्वियस इमिटेशन जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये नकली बना हुआ है, इमिटेशन है, उसकी कॉपी है, देयर ऑफ, एक्सेप्ट विद द लाइसेंस, मतलब कि उसको अगर कोई लाइसेंस मिला हुआ है उसके अलावा, और रिटन कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, या फिर जो भी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है जिसने उस डिज़ाइन के संबंध में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है उस ओरिजिनल डिज़ाइन का, उस व्यक्ति के पास या तो उसकी रिटन कंसेंट है या तो उसको उसने लाइसेंस दिया है, मतलब उसके पास लाइसेंस है वैसा करने का, और टू डू एनीथिंग विद अ व्यू टू एनेबल द डिज़ाइन टू बी सो अप्लाइड, या फिर और भी कुछ करने के लिए, मतलब और टू डू एनीथिंग मतलब और कुछ करने के लिए, विद व्यू टू एनेबल द डिज़ाइन टू बी सो अप्लाइड, मतलब वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो उस डिज़ाइन को अप्लाई कर सके, उस डिज़ाइन का यूज़ कर सके। और पहली चीज़ क्या हो गया कि अगर उस व्यक्ति ने, मतलब ये लॉफुल नहीं है, क्या चीज़ लॉफुल नहीं है, कि जब किसी डिज़ाइन का कॉपीराइट एग्जिस्टेंस में है और कोई व्यक्ति उस डिज़ाइन को बेचने के उद्देश्य से, ठीक है, सेल के पर्पस से, या फिर उस डिज़ाइन को किसी आर्टिकल में यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने के पर्पस से, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाए, और वो डिज़ाइन जो है वो किसी भी क्लास ऑफ आर्टिकल्स में वो रजिस्टर हो चुकी है, ऐसी डिज़ाइन का वो व्यक्ति क्या करता है, फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन बना लेता है, मतलब कपटपूर्ण या एकदम साफ पता चल रहा है कि ये कॉपी है, ये नकली है, बना लेता है, एक्सेप्ट विद द लाइसेंस और रिटन कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, मतलब केवल अगर उसके पास लाइसेंस है तब, या फिर जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है उसकी कंसेंट है तब, ऐसी स्थितियों को छोड़कर, और टू डू एनीथिंग विद व्यू टू इनेबल द डिज़ाइन टू बी सो अप्लाइड, मतलब फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेट करता है उस डिज़ाइन को, या फिर और कुछ भी, मतलब उस डिज़ाइन का यूज़ करता है, ठीक है, उस डिज़ाइन को प्रयोग करने के लिए करता है, ठीक है, केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि उसके पास लाइसेंस हो उसे यूज़ करने का, या फिर जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है उसको लिखित में कंसेंट दे रखी हो, तो ये लॉफुल नहीं होगा। ए पॉइंट ये कहता है। इसके बाद जब हम बी में आते हैं तो बी पॉइंट क्या कहता है कि क्या लॉफुल नहीं होगा, टू इम्पोर्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ सेल, वो ऐसी डिज़ाइन, ऐसी रजिस्टर्ड डिज़ाइन जिसका कॉपीराइट एग्जिस्ट कर रहा है, कॉपीराइट एग्जिस्टेंस में है उस रजिस्टर्ड डिज़ाइन का, तो लॉफुल नहीं होगा कि वो क्या करेगा कि ऐसी डिज़ाइन को टू इम्पोर्ट फॉर पर्पसेज ऑफ सेल, मतलब वो सेल के पर्पस से आयात करे, मंगाए, या फिर और कैसे मंगाए, विदाउट द कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, बिना रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर की कंसेंट के, मीन द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैज़ नॉट गिवन द कंसेंट रिगार्डिंग दिस that person should import that design or that article for sale, okay। तो फिर क्या है, any article belonging to the class in which the design has been registered, मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल जो डिज़ाइन के मतलब किसी भी क्लास में रजिस्टर
हो चुका है। मतलब ऐसी कोई भी डिज़ाइन जिसका रजिस्ट्रेशन किसी भी वर्ग में डिज़ाइन एक्ट में हो चुका है, उसको रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर की कंसेंट के बिना कोई व्यक्ति सेल के पर्पस से इंपोर्ट करता है। ठीक, तो ये क्या है, लीगल नहीं है। और क्या है कि and having applied it to the design or any fraudulent or obvious imitation thereof, और उसने उस डिज़ाइन को, मतलब उस चीज़ को इम्पोर्ट किया, उस आर्टिकल को, उस डिज़ाइन को इम्पोर्ट किया, उसके बाद उसका यूज़ उसने क्या किया है कि एंड हैविंग अप्लाइड इट, इसने उसको अप्लाई किया उस व्यक्ति ने द डिज़ाइन, मतलब उस डिज़ाइन को, और एनी फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन देयर ऑफ, मतलब या फिर उसका फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन, मतलब उसने उस डिज़ाइन का इस्तेमाल किया या उस डिज़ाइन की इमिटेशन बनाकर उसका इस्तेमाल किया विदाउट द कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। ठीक है, तो ये फिर लॉफुल नहीं है। ये बी पार्ट कहता है कि उसने उस डिज़ाइन को मंगाया, उसने उस आर्टिकल को इम्पोर्ट किया है विदाउट कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, और वो डिज़ाइन ऑलरेडी किसी न किसी वर्ग में, किसी न किसी क्लास में, डिज़ाइन एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो और उसने उस डिज़ाइन को इम्पोर्ट करने के बाद उस डिज़ाइन का यूज़ किया, फिर उसने क्या किया, या तो उसने यूज़ किया या फिर उसने फ्रॉडुलेंटली या ऑब्वियस इमिटेशन उसका बनाया, तो ये जो है लॉफुल नहीं है। ये आपका सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी कहता है। अब हम आते हैं क्लॉज सी में। क्लॉज सी क्या कहता है? क्लॉज सी बात करता है कि knowing that the design or any fraudulent or obvious imitation thereof has been applied to any article in any class of articles in which the design is registered without the consent of the registered proprietor to publish or expose or cause to be published or exposed for sale that article। अब क्या है, तीसरी चीज़ क्या लॉफुल नहीं है कि वो भी लॉफुल नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है कि वो जानता है, नोइंग कि जान रहा है दैट द डिज़ाइन, कि वो जो डिज़ाइन है और एनी फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन देयर ऑफ हैज़ बीन अप्लाइड, कि वो जान रहा है कि वो डिज़ाइन या उसका कोई भी फ्रॉडुलेंट या ऑब्वियस इमिटेशन मतलब डिज़ाइन या उसका कोई भी कपटपूर्वक कोई उसका जो कॉपी बनाया गया है, उसकी नकल बनाई गई है, उसको अप्लाई किया गया है टू एनी आर्टिकल, किसी आर्टिकल पर, किसी वस्तु पर, इन एनी क्लास ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जो भी कोई भी क्लास ऑफ आर्टिकल इन विच द डिज़ाइन इज रजिस्टर्ड, मतलब जिसमें किसी भी क्लास ऑफ आर्टिकल में वो डिज़ाइन रजिस्टर्ड है और वो व्यक्ति जान रहा है कि ये डिज़ाइन ऑलरेडी रजिस्टर है, और जानते हुए भी उसने उस डिज़ाइन का फ्रॉडुलेंट मतलब उस डिज़ाइन का यूज़ किया या फिर उसका फ्रॉडुलेंट या मतलब ऑब्वियस इमिटेशन किया और उसको किसी आर्टिकल पर यूज़ किया। और उसके साथ साथ क्या गलती है उसकी कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर किया, कि उसका जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है उससे उसने कंसेंट नहीं लिया, ठीक है, उसकी सहमति नहीं है, और उसके बाद भी उसने क्या किया है, ऐसे डिज़ाइन को, ऐसे फ्रॉडुलेंट और इमिटेशन को, फ्रॉडुलेंट इमिटेशन को उसने क्या किया, टू पब्लिश और एक्सपोज, उसने पब्लिश किया या फिर एक्सपोज किया, ठीक है, उसको पूरा मतलब सबको उसके बारे में बताया, और कॉज टू बी पब्लिश्ड और एक्सपोज्ड फॉर सेल दैट आर्टिकल, मतलब उसने उसको पब्लिश कर दिया, उस डिज़ाइन को उसको एक्सपोज कर दिया, लोगों को बता दिया, उनको पब्लिश कर दिया उस आर्टिकल की सेल के लिए। मतलब वो क्या कर रहा है, एक फ्रॉडुलेंट एक डिज़ाइन को सेल कर रहा है, एक फ्रॉडुलेंट है या ऑब्वियस इमिटेटेड डिज़ाइन को सेल कर रहा है, जिसके बारे में वो जानता है कि वो किसी क्लास ऑफ आर्टिकल्स में डिज़ाइन एक्ट में रजिस्टर्ड है, और उसने साथ साथ कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर भी नहीं ली। तो उसने जब उस डिज़ाइन को पब्लिश किया, उसको एक्सपोज किया लोगों के सामने सेल के पर्पज़ से, तो ये क्या है, ये भी लॉ का वायलेशन है, ये लॉफुल नहीं है। दिस इज क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ डिज़ाइन एक्ट 2000। ओके, दिस इज subsection 1. Now we come to subsection 2 of section 22.
ठीक है। सब सेक्शन 2 ऑफ 22 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, उसका क्लॉज 1 देखिए। क्लॉज 1 कहता है इफ एनी पर्सन एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, अगर कोई व्यक्ति इस सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन में कोई काम करता है, ठीक है, इस सेक्शन को मतलब इस सेक्शन को के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ता है, जो भी बताया गया है उसके विपरीत काम करता है, ही शेल बी लायबल फॉर एवरी कॉन्ट्रावेंशन, वो हर एक कॉन्ट्रावेंशन के लिए, मीन्स जब भी उसने उस नियम को तोड़ा, जब भी उसने किसी चीज़ को किसी लॉ को तोड़ा, तो क्या होगा, उसके लिए वो लायबल होगा। उसी की एक क्लॉज क्या कहती है, मतलब सब सेक्शन 22 का सब सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1 की एक क्लॉज कहती है कि क्या होगा, टू पे द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द डिज़ाइन अ सम नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ रिकवरेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट। अब क्या है, वो जब भी कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ के अगेंस्ट, तो क्या होगा, उसे रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को कितना रुपया देना होगा, एक एज ए कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट, जैसे उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में कोई उसके ऊपर कर्जा है, कुछ ड्यू मनी है, उस तरह से उसको 25,000 रुपया कम से कम, मीन्स 25,000 से ज़्यादा नहीं देना होगा, नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, ठीक है, उसको 25,000 रुपया रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को देना होगा। ये हो गया ए क्लॉज। बी क्लॉज क्या कहता है, और ठीक है, ए में देखिए लास्ट में एक एज अ कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट, और ठीक है, या तो वो 25,000 तक देगा कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट के रूप में। दूसरा बी पार्ट क्या है, इफ़ द प्रोप्राइटर इलेक्ट्स टू ब्रिंग ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, अगर प्रोप्राइटर मान लीजिए 25,000 लेके नहीं मानता, ठीक है, उसको नहीं लगता कि उसका जो नुकसान हुआ है वो 25,000 से भरपाई हो सकती है, और प्रोप्राइटर क्या इलेक्ट करता है, वो इलेक्ट करता है टू ब्रिंग ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस को इलेक्ट करता है कि उसको जो भी डैमेजेस हुए हैं उनके लिए वो रिकवरी का सूट फाइल करेगा फॉर एनी सच कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। इस तरह के किसी भी कॉन्ट्रावेंशन के लिए प्रोप्राइटर ने सूट फॉर रिकवरी फाइल करने को मतलब चुना है कि वो सूट फॉर रिकवरी के लिए ही अप्लाई करेगा। एंड फॉर एन इंजंक्शन अगेंस्ट द रेपुटेशन देयर ऑफ, और क्या है कि वो क्या कर सकता है, एंड फॉर एन इंजंक्शन, इंजंक्शन कहते हैं निषेधाज्ञा को, मतलब उसने जो है इंजंक्शन ले लिया अगेंस्ट द रिपीटेशन देयर ऑफ, कि रिपीटेशन ना हो इस तरीके के मतलब उसके लिए डैमेजेस का, या बार बार कोई व्यक्ति एक ही गलती ना करे, और अगर बार बार इस निषेधाज्ञा का कोई व्यक्ति रिपीटेशन करता है तब क्या होगा, टू पे सच डैमेजेस, उसको वो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे एज मे बी अवॉर्डेड, जो कि दिए जा सकते हैं, एंड टू बी रेस्ट्रेन्ड बाय इंजंक्शन अकॉर्डिंगली, मतलब उसको वो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे जो कि इंजंक्शन के थ्रू, मतलब उसको इंजंक्शन के थ्रू रेस्ट्रेन किया गया था, लेकिन उसने उस इंजंक्शन को बार बार तोड़ा, उसने बार बार उसको रोका गया था लेकिन उसने उस लॉ को बार बार तोड़ा, तो जो भी डैमेजेस इंजंक्शन में उसके लिए बताए गए थे कि अगर वो ये रूल को तोड़ेगा, ये निषेधाज्ञा तोड़ेगा, तो फिर उसको ये पे करना पड़ेगा, तो उसको वो देना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसी का प्रोविजो देखिए क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द टोटल सम रिकवरेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी वन डिज़ाइन, मतलब अंडर क्लॉज ए शेल नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज़। अब देखिए इसका जो क्लॉज ए है वो कह रहा था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट के रूप में, मतलब वो 25,000 से ज़्यादा नहीं देना होगा, मीन्स 25,000 तक देना होगा, लेकिन प्रोवाइडेड में कह दिया है कि अगर मान लीजिए कि जैसे ये तो कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट के रूप में उनके बीच समझौता हो गया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के रूप में 25,000 दे दिया, अब दूसरे में अगर उसने इलेक्ट किया है रिकवरी के लिए, सूट फाइल किया है, इंजंक्शन लिया है, तो ऐसे में अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है, वो लॉ को तोड़ रहा है वो व्यक्ति, बार बार वही कर रहा है, तो उसमें ऐसी स्थिति में इसीलिए प्रोवाइडेड दिया गया है कि प्रोविजो में क्या दिया गया है कि द टोटल सम रिकवरेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी वन डिज़ाइन, किसी एक डिज़ाइन के संबंध में अंडर क्लॉज ए
क्लॉज ए में जो डिज़ाइन के बारे में बात किया गया है उसके संबंध में जो रिकवरेबल अमाउंट होगा वो टोटल सम शेल नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज़, वो 50,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, मीन्स वो 50,000 तक का होगा। इसके बाद दूसरा प्रोविज़ो क्या कहता है, वो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग फॉर रिलीफ under this subsection shall be instituted in any court below the court of district judge। मीन्स टू से डिज़ाइन एक्ट में जो भी ऐसी प्रोसीडिंग हो रही है, मीन्स कोई व्यक्ति रिकवरी के लिए केस कर रहा है, इस टाइप का मतलब कोई भी लॉ ब्रेक हुआ है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में काम हुआ है और उसके लिए जब कोई रिलीफ क्लेम कर रहा है इस सब सेक्शन में, ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग फॉर रिलीफ अंडर दिस सब सेक्शन। इस सब सेक्शन में सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 22 में जो भी रिलीफ के लिए प्रोसीडिंग होंगी वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट की जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में इंस्टीट्यूट की जाएंगी, ठीक है, उनको और बिलो कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। मीन्स टू से जो भी रिलीफ प्रोसीडिंग्स होंगी सब सेक्शन 1 की वो इस सेक्शन सब सेक्शन में जो बताई गई हैं सब सेक्शन 2 चल रहा है, ओके। तो जो भी आपकी रिलीफ प्रोसीडिंग होंगी वो कहाँ होंगी, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में होंगी। इससे नीचे की कोर्ट में लिखा हुआ है ना कि नो सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग फॉर रिलीफ अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट बिलो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कि कोई भी सूट या कोई भी रिलीफ प्रोसीडिंग नहीं होगी डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की कोर्ट में, ठीक है, कोई भी सूट या कोई भी प्रोसीडिंग फाइल नहीं की जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की कोर्ट में। इट मीन्स जो भी प्रोसीडिंग रिलीफ से रिलेटेड इस सबसेक्शन में होंगी वो मतलब कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में होंगी, ओके। ये हो गया आपका सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2, ओके। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि इन एनी सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग फॉर रिलीफ अंडर सबसेक्शन 2। अब क्या है कि इन एनी सूट, कोई भी सूट है या कोई भी और एनी अदर प्रोसीडिंग और फॉर रिलीफ या कोई भी रिलीफ के लिए प्रोसीडिंग है अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में कोई भी सूट फाइल हो रहा है या कोई भी रिलीफ प्रोसीडिंग होनी है तो क्या होगा, एवरी ग्राउंड ऑन विच द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिज़ाइन में बी कैंसिल्ड, कि हर एक वो ग्राउंड जिस पर डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, कहाँ पर कैंसिल किया जाता है, अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 किस चीज़ की बात करता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइंस की, ठीक है, कि आप किसी डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं। तो वो कह रहा है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 22 की कोई भी सूट या कोई भी रिलीफ प्रोसीडिंग जो कि सब सेक्शन 2 में स्टार्ट हुई है और किसी ऐसे ग्राउंड पर, एवरी ग्राउंड ऑन विच द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिज़ाइन में बी कैंसल्ड अंडर सेक्शन 19 शैल बी अवेलेबल एज ए ग्राउंड ऑफ डिफेंस। मतलब जिन ग्राउंड्स पर सेक्शन 19 में डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है वो सभी ग्राउंड जो हैं एज ए ग्राउंड ऑफ डिफेंस अवेलेबल रहेंगे, ओके। ये हो गया सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 22। नाउ वी कम टू सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 22। ये क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सेकेंड प्रोविजो टू सब सेक्शन 2। अब सेकेंड प्रोविजो क्या था, सेकेंड प्रोविजो था कि प्रोवाइडेड, सबसेक्शन 2 का देखिए, सबसेक्शन 2 में हम चल रहे हैं, 2 का सेकेंड प्रोविजो कह रहा है कि कोई भी प्रोसीडिंग बिलो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में नहीं होगी, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की कोर्ट में फाइल नहीं होगी। तो वही कह रहा है सब सेक्शन 4, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सेकेंड प्रोविजो टू सब सेक्शन 2 वेयर एनी ग्राउंड और बिच on which the registration of a design may be cancelled under section 19 has been availed of as a ground of defense, and subsection 3 in any suit or other proceeding for relief under subsection 2 the suit or such other proceedings
shall be transferred by the court in which the suit or such other proceeding is pending to the high court for decision. मीन्स क्या है कि कोई भी चीज़ जो भी मतलब इसमें सेकंड प्रोविज़ो के अकॉर्डिंग सब सेक्शन 2 में जहाँ पर क्या है कि ग्राउंड्स जो हैं जो भी रजिस्ट्रेशन के डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के ग्राउंड सेक्शन 19 में हैं वो अवेल किए जा रहे हैं एज ए ग्राउंड ऑफ डिफेंस। और सब सेक्शन 3 में क्या कह रहा है कि इन एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग फॉर रिलीफ, की कोई भी सूट या दूसरी प्रोसीडिंग है रिलीफ के लिए अंडर सब सेक्शन 2, तब क्या क्या होगा, द सूट और अदर सच प्रोसीडिंग शैल बी ट्रांसफर्ड। वहाँ पर कोर्ट से ऐसा सूट या ऐसी प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र किया जाएगा इन विच द सूट और अदर सच प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, जहाँ पर वो पेंडिंग है टू द हाई कोर्ट फॉर डिसीजन। मतलब कि हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वहाँ पर उसको अगर मतलब कुछ भी ऐसा वो आता है, कुछ भी ऐसा जो प्रोविज़ो के अकॉर्डिंग जो सेकंड प्रोविज़ो है इसके अकॉर्डिंग मतलब बिलो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज तो होगा नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट हो गया वो तो बिगिनिंग कोर्ट हो गया, जहाँ पर मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर प्रोसीडिंग शुरू हुई है। उसके बाद जो है वो जो तीसरा वाला कह रहा है कि जहाँ पर कैंसिलेशन के ग्राउंड है वो सेक्शन 19 में दिए गए वो एज अ डिफेंस यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी सूट और प्रोसीडिंग जो रिलीफ के लिए सब सेक्शन 2 में है, ठीक है, वो क्या है, ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रांसफ़र की जा सकेगी, हो जाएगी कहाँ पर, वो जहाँ ये और सच अदर प्रोसीडिंग इज़ पेंडिंग, जहाँ पर ये प्रोसीडिंग पेंडिंग है। मतलब मान लो प्रोसीडिंग पेंडिंग है या प्रोसीडिंग चल रही है का मतलब वही है कि पेंडिंग है, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डिसीज़न के लिए उसको हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्योंकि ये जो है मान लीजिए वहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है पार्टी, तो फिर वो क्या करेगा, हाई कोर्ट जाना चाहेगा, तो वो अगर वो पार्टी चाहती है तो वहाँ से उसको हाई कोर्ट ऐसे मैटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दिस इज सेक्शन 22. There are 4 subsections we have studied. Now we come the last one subsection of section 22, that is subsection 5, and that says where the court makes a decree in a suit under subsection 2. ठीक है, अब जहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, सबसेक्शन 2 में इसकी डिक्री की, ठीक है, कोई जजमेंट आया उसकी डिक्री हुई, तो कोर्ट की क्या ड्यूटी होगी, इट शैल सेंड ए कॉपी ऑफ द डिक्री टू द कंट्रोलर। ठीक है, कोई जजमेंट आ गया तो उसके बाद कोर्ट ने उसको डिक्री किया, कि डिक्री का मतलब मैंने आपको सीपीसी में समझाया है। ठीक है, जब डिक्री हो गया, डिक्री की गई, तो उसकी एक कॉपी, उस डिक्री की एक कॉपी किसको भेजी जाएगी, कंट्रोलर को भेजी जाएगी। हु शैल कॉज एन एंट्री देयरऑफ टू बी मेड इन द रजिस्टर ऑफ डिजाइन्स। वो क्या करेगा, कंट्रोलर की ड्यूटी है कि वो इस चीज़ की, इस बात की, इस फैक्ट की रजिस्ट्री कहाँ पर करेगा, इस फैक्ट को एंट्री करेगा रजिस्टर ऑफ डिज़ाइंस। जो भी रजिस्टर ऑफ डिज़ाइंस है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ डिज़ाइंस कहाँ पे है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 10 में। रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन है तो वहाँ पर जो डिक्री की कॉपी कोर्ट भेजेगा उसको वो कंट्रोलर की ड्यूटी होगी, कंट्रोलर को भेजेगा वो डिक्री की कॉपी कोर्ट, और कंट्रोलर उसकी एंट्री जो है रजिस्टर ऑफ डिज़ाइंस में करेगा। ठीक है, करेगा का मतलब करवाएगा, जो भी है उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर या खुद से वो एंट्री जो है रजिस्टर में होना मैंडेटरी है। नाउ वी कम टू वन मोर सेक्शन वी विल टेक इन दिस एक्ट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेक्शन 36, ठीक है। नाउ वी कम इन चैप्टर 7। आई होप कि दिस इज इन चैप्टर 7, सेक्शन 7। ओके, चैप्टर 7 बात करता है पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कंट्रोलर की। ठीक है, इसमें हम लेते हैं सेक्शन 36।
वी शुड हैव टू नो क्लियरली कि 36 क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि 36 जो है वो अपील्स टू द हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली बता दिया गया है कि जो इसकी जो अपील होगी वो किसी भी केस की जो अपील है, अपीलिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट है, तो कौन से सेक्शन में इसका प्रोविज़न पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया गया है वो सेक्शन 36 बताता है। तो हम इस सेक्शन को और देखेंगे। ये क्या कहता है कि 36 का क्लॉज 1 कहता है कि वेयर एन अपील इज डिक्लेयर्ड बाय दिस कोर्ट टू लाई फ्रॉम द कंट्रोलर टू द हाई कोर्ट, जहाँ पर ये डिक्लेयर हो गया इस एक्ट के द्वारा कि अपील जो है कंट्रोलर से हाई कोर्ट को जाएगी। द अपील शैल बी मेड विद इन, अब इसमें ये भी देखना है, ये तो क्लियर है कि हाई कोर्ट को जाएगी, लेकिन कितने समय में जाएगी। तो 36 का क्लॉज 1 कहता है, 36 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जहाँ पर ये डिक्लेयर है कि अपील जो है वो कंट्रोलर से हाई कोर्ट को जानी है, तो द अपील शेल बी मेड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द कंट्रोलर। तो जिस डेट पर कंट्रोलर ने ऑर्डर पास किया उससे 3 महीने के अंदर अपील फाइल की जाएगी हाई कोर्ट में, मतलब 3 month का टाइम है। इसी का सब सेक्शन 2 कहता है इन कैलकुलेटिंग द सैड पीरियड ऑफ द 3 months, कि जब हम ये 3 महीने का पीरियड कैलकुलेट करना है कि 3 महीने का पीरियड कब से स्टार्ट होता है, तो द टाइम इफ एनी ऑक्यूपाइड इन ग्रांटिंग ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट शेल बी एक्सक्लूडेड। तो वो टाइम जिसमें कि जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो मिला, ठीक है, जब तक वो कॉपी ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक आप अपील नहीं कर सकते, तो उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, 3 महीने में नहीं माना जाएगा। मतलब जिस डेट में आपको उस ऑर्डर की अपील मिल गई, कंट्रोलर के ऑर्डर के अपील की कॉपी मिल गई, ठीक है, सॉरी कंट्रोलर के ऑर्डर की कॉपी मिल गई, ठीक, उस डेट से 3 महीने होगा, उससे पहले नहीं। मान लीजिए कि ऑर्डर पहले आ गया, कॉपी 2 दिन बाद मिल रही है, तो वो 2 दिन काउंट नहीं होंगे। जिस दिन को आपको कॉपी मिली उसके ऑर्डर की, उस दिन से 3 महीने का पीरियड होगा। ये आपको 36 का सबसेक्शन 2 बताता है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है इसी का 36 का, कि द हाई कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ऑब्टेन द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट इन डिसाइडिंग सच अपील्स। अब क्या है, बिकॉज दिस इज स्पेशल एक्ट, ठीक है, डिज़ाइन एक्ट पर्टिकुलर, तो इसमें स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है, कुछ लोग इसके स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उसे किसी एक्सपर्ट की ऐसी अपील को डिसाइड करने में किसी एक्सपर्ट की असिस्टेंस लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए, तो हाई कोर्ट ले सकता है, ठीक है। एंड द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट शेल बी फाइनल, और हाई कोर्ट का डिसीजन जो है फाइनल होगा, ठीक। अब इसी का सबसेक्शन 4 कह रहा है 36 का कि द हाई कोर्ट में मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। हाई कोर्ट जो भी रूल्स बनाएगा वो इस एक्ट से कंसिस्टेंट बनाएगा, इस एक्ट से संगत रूल्स बनाएगा, एज टू द कंडक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट बिफोर इट। मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस हाई कोर्ट को बनाने हैं इस एक्ट से वो कंसिस्टेंट होंगे, जो भी इसके प्रोसीडिंग से, इस एक्ट की प्रोसीडिंग्स के, इसके प्रोसीजर से, इसके कंडक्ट से रिलेटेड है हाई कोर्ट के लिए, तो वो कंसिस्टेंट रूल्स ही बनाएगा। दिस इज सेक्शन 36। सो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम डिज़ाइन एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।